Good morning, class 8th. How are you? I hope you all are well. And what about the weather in your locality? Hmm? Is it foggy? Here there is no fog in Prayagraj. So now weather is very pleasant right now. So let's start our chapter number 5, the Indian judicial system, page number 253. This is the last topic of this chapter, and that is public interest litigation. Public interest litigation. What is this? In Hindi you can say it is जनहित याचिका. ठीक है? A litigation in the favor of public interest. So when rights of the people are violated, any person or organization can file a petition for redress in a high court or in the Supreme Court. See this petition, redress, violated. What is the meaning of violated? Violated means to break the rule, or you can say an act against the law, or to spoil, to damage. ठीक? And Hindi you can say it's उल्लंघन. Petition. What is the meaning of petition? In general you can say it's appeal. Okay, petition means appeal. And what is redress? Redress to correct something or rectify. Okay, to rectify something, to correct something. This is redress. So ये public interest litigation का file की जाती है when the rights of the people are violated, when the rights of the people are spoiled by anyone or by any organization, any person or any organization. In that case, any person of India or any organization of India, they can go to court and file a petition against this act. And where they will go? They can go to High Court, or if they want, they can go to Supreme Court also. Because you know, the highest court of appeal in India is Supreme Court. So at last, where they will go? They will go to Supreme Court. Such a petition may also be filed in public interest to make a government perform a public duty, or when something like environmental pollution harms or threatens to harm the public. And these kinds of petition पब्लिक इंटरेस्ट में भी फाइल की जा सकती है. अभी आपने वो लाइन में क्या पढ़ा कि अगर किसी का राइट वॉलेटेड किया जा रहा है, मीन्स किसी के राइट को स्पॉइल किया जा रहा है, देन अ पर्सन कैन गो और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गो टू द कोर्ट टू फाइल द पिटिशन अगेंस्ट दैट एक्ट. बट इस तरह के पिटिशंस पब्लिक इंटरेस्ट में भी फाइल किए जा सकते हैं. फॉर व्हाट? To make a government perform a public duty, or when something like environmental pollution means आपने एक अभी कुछ months before some months जूही चावला film actress she filed a petition against a 5G network. जानते हैं ना आप सब? उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 5G नेटवर्क के लिए जो टावर्स लगाए जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं. सो ये किसके फेवर में गई थी? वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं गई थी, वो पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी. सो ये जो पिटिशंस होती है उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में भी फाइल किया जा सकता है फॉर टू पर्पज़. फॉर वन, to make a government perform a public duty, or anything like environmental pollution or threatens to harm the public. किसी भी उसमें आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं.
The process of making or defending a claim in a court of law is called litigation. What is litigation? Litigation, it's a process. What kind of process it is? It's a process where making or defending a claim, when a person defending a claim in a court of law, means you can say the meaning of litigation is the act or process or practice of setting a dispute in a court. So this is the meaning of litigation, the process and practice or an act of setting a dispute in a court. You know what is litigation for protecting public interest is known as public interest litigation. PIL. कौन से लिटिगेशन PIL कहलाते हैं? जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. The PIL can be filed by anyone acting in public interest. ये किसी के भी थ्रू फाइल किया जा सकता है. मीन्स कोई भी जाके पब्लिक इंटरेस्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है. You know, so what do you understand by the PIL? Actually, PIL or public interest litigation is the use of the law to advance human rights and equality. Okay, it is the use of law to advance human rights and equality, or you can say to raise issues of broad public concern, to or raise issues of broad public concern. So PIL क्या है? PIL का यूज़ क्यों किया जाता है? It is the use of law. Why we are using this law? PIL is the use of law to advance human rights and equality and raise issues of broad public concern. ठीक, PIL का यूज़ क्यों किया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा एडवांस किया जाए, इक्वलिटी को एडवांस किया जाए. ठीक. And you know, in India it was introduced by Justice P.N. Bhagwati. He was the 17th Chief Justice of India. ये जो PIL का जो कॉन्सेप्ट है ये एक एट वंस नहीं आया था. ये स्लोली आना स्टार्ट हुआ था आफ्टर 1970s. और इन 1977 इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पास की गई थी. ठीक. सो 1980 से पहले ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी. मतलब ये PIL का कॉन्सेप्ट नहीं था. So see the one example in your book. Naveen Jindal, an industrialist and member of parliament, filed a public interest litigation to allow the citizens of India to hoist the national flag. नवीन जिंदल कौन है? ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं. पार्लियामेंट के मेंबर मतलब क्या कहते हैं इनको? MLA कहते हैं या MP? ये MP है. ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी. फॉर व्हाट? टू अलाउ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू होस्ट द नेशनल फ्लैग. बिकॉज इससे पहले इंडियन सिटीजन्स को नेशनल फ्लैग सिर्फ आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही होस्ट करने की परमिशन मिलती थी और 2 अक्टूबर. ठीक. बट इससे पहले कि ईयर में आप पूरे थ्रू आउट द ईयर यू कैन नॉट होस्ट योर नेशनल फ्लैग. बट नवीन जिंदल जी इन्होंने एक पिटिशन फाइल की और उन्होंने ये परमिशन मांगी कि इंडियन सिटीजन्स को किसी भी दिन, साल के किसी भी दिन फ्लैग होस्ट करने की परमिशन दी जाए. और इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी. तो सुप्रीम कोर्ट रोल इन इस फेवर. ठीक है, उन्होंने उनके फेवर में डिसीजन लिया और उन्होंने गवर्नमेंट Supreme Court asking the government of India to consider the matter. Then Supreme Court ने इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा कि भाई इस मैटर को कंसिडर करें और इसको ध्यान में रखें और इसके बारे में कुछ करें. देन क्या हुआ? द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया देन अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन
देन द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया जो थी उस टाइम पर, उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, एंड देन विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 2002, और 26 जनवरी 2002 से ये अमेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन बता चुकी हूँ। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अमेंड कब से इफेक्ट में आया? 26 जनवरी 2002। व्हाट डज दैट मीन? मतलब 26 जन 2002 से पहले इंडियन सिटीजन्स को साल में किसी भी दिन फ्लैग होस्ट करने की परमिशन नहीं मिलती थी, एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी। बट आफ्टर 26 जनवरी 2002, इस एक्ट ने अलाउइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू होस्ट द फ्लैग ऑन एनी डे ऑफ द ईयर के किसी भी दिन फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। अब आफ्टर दिस पिटिशन, जब नवीन जिंदल जी ने पब्लिक लिटिगेशन फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को ये बोला कि इस मैटर को कंसिडर करें, उसके बाद जो यूनियन कैबिनेट थी उन्होंने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 26 जनवरी 2002 से ये इफेक्ट में आ गया। इसने क्या अलाउ किया कि अब इंडियन सिटीजन्स ईयर के किसी भी डे फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, बट दे हैव टू सेफगार्ड द डिग्निटी एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लैग। मीन्स आप फ्लैग होस्ट करने की परमिशन इंडियन सिटीजन्स को तो दे दी गई, लेकिन टू विद फुल रिस्पेक्ट ऑफ दैट फ्लैग, मतलब इंडियन सिटीजन्स को अपने फ्लैग की फुल डिग्निटी मेंटेन करनी है, उन्हें उसका ऑनर और रिस्पेक्ट पूरा का पूरा रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लैग होस्ट कर दिया और अब भूल गए हो और एक साल पूरा या फिर कुछ दिनों तक फ्लैग यूं ही लगा हुआ है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर फ्लैग की डिग्निटी लोग मतलब फ्लैग लगा के भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि अगर फ्लैग को आपको लग रहा है कहीं पे वो कट फट गया है, ठीक है, तो उसे आप हटा दीजिए। अगर वो थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो भी आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि वो आपका नेशनल फ्लैग है एंड यू हैव टू, being the citizen of India, you have to respect your flag, you have to maintain the dignity of your national flag। कोई आम फ्लैग तो है नहीं, ये हमारा नेशनल फ्लैग है। वी हैव टू शो द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स आवर नेशनल फ्लैग। ओके, आपको अपने नेशनल फ्लैग की डिग्निटी मेंटेन करनी है, उसके ऑनर मेंटेन करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, देन ओनली यू कैन होस्ट द नेशनल फ्लैग इन एनी ईयर, एनी डे ऑफ द ईयर। सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। अभी आप लोग काफ़ी बार ये न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो ना कि जनहित याचिका में ये पिटिशन फाइल की गई, वो पिटिशन फाइल भी की गई, बट अभी आजकल क्या हो रहा है कि लोग इस लॉ का भी मिसयूज़ करते हैं। कोई भी नॉर्मल से भी चीज़ है, कुछ भी है, उसे PIL के अंडर वो फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट कि हर बात पे लोग PIL फाइल कर देते हैं, ठीक है। सो आपको अब समझ में आया कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। So this chapter is completed here. Let's do quick revision by points in brief. The Constitution of India provides for independent judiciary. It is a body that upholds law, punishes the guilty, and settles disputes. It safeguards the basic rights of the citizens of India. Constitution of India, आपको मालूम है इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन इट्स वर्क। ओके, it upholds the law, settles the disputes, and of course punishes the guilty also, and it protects or safeguards the basic rights of the citizens of India. Basic rights, fundamental rights of the citizens of India. Then the second one is the Government of India Act. इंडिया में फेडरल कोड कब से स्टार्ट हुए थे? इट स्टार्टेड इन आफ्टर 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The Government of India Act 1935 led to the foundation of federal court in India, and
व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तब इंडिया में फेडरल कोर्ट्स आए, बट इट रिप्लेस बाई इट सब्स्टिट्यूटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 28 जनवरी 1950। ओके, 1950 के बाद जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, उसके बाद फेडरल कोर्ट इंडिया से हट गए और उसकी जगह पे क्या आ गए, सुप्रीम कोर्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्या करता है, ये चैप्टर नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड की गई है वो कहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर 4 में। द सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड देयर ऑफिस, यस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो उनकी रिटायरमेंट की डेट क्या होती है, एज क्या होती है, 65 ईयर्स तक होती है। बट द हाई कोर्ट्स के जजेस कब रिटायर हो सकते हैं, मतलब वो उनके एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है, एट्स, बताइए, पढ़ चुके हैं ना आप लोग, कुछ डिफरेंस था दोनों में। जो हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं वो 62 ईयर्स तक अपना वर्क कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 ईयर्स तक कर सकते हैं। Then the biggest responsibility is that it is the highest court of appeal and is also the protector of the constitution in the country. सुप्रीम कोर्ट की बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, किस बात का, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ओके, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है मीन्स ये अपहोल्ड्स करता है लॉ को, बनाए रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। द स्टेट जुडिशरी, अब तो ये होगी आपकी सेंट्रल जो आपकी जुडिशियल सिस्टम है। स्टेट जुडिशरी क्या है, स्टेट जुडिशरी में क्या होता है, स्टेट जुडिशरी में कंसिस्ट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, हाई कोर्ट्स होते हैं, और देन उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इन ईच डिस्ट्रिक्ट हैविंग सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। द केसेस कैन मूव फ्रॉम टू द लोअर टू अपर कोर्ट्स, और जो केसेस होते हैं वो लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट्स में मूव किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फर्दर अपील्स मेड बाय लिटिगेंट्स। ऐसे ही नहीं कि आप को अच्छा नहीं लगा अब हम जा रहे हैं हाई कोर्ट, नो, नॉट लाइक दिस, आपको उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू अपील इन द हायर कोर्ट्स। अगर आपकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको डिसीजन आपको नहीं समझ में आया या आपको लगता है कि ये सही नहीं हुआ, तो यू कैन गो फर्दर टू द लो अपर कोर्ट्स, ओके, अपर कोर्ट्स में जाइए, हाई कोर्ट्स जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपील कीजिए। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं आ रहा है समझ में, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट, इट इज़ द व्हाट यू से, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक। देन द इंडियन लीगल सिस्टम हैंडल्स केसेस इन 2 सेपरेट वेज। इंडियन लीगल सिस्टम क्या है, 2 तरीके से केसेस को हैंडल करते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। द लोक अदालत इज़ अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट। इनके अलावा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, देन हाई कोर्ट्स, देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब सिविल कोर्ट्स होते हैं, और सेशन कोर्ट्स होते हैं, और कौन से कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, और सेशन कोर्ट्स होते हैं। फिर इनके अलावा लोक अदालतें भी होती हैं, लोक अदालत होती है, लोक अदालत क्या है, इट्स अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंडिया में इसको डेवलप किया गया है टू लाइटन द बर्डन ऑफ ऑन द रेगुलर कोर्ट्स, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे केसेस की नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इन्हीं बर्डन की वजह से जो रेगुलर कोर्ट्स हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो मैटर्स हैं, वो बाहर ही इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसको सेटल कर दिया जाए, और दोनों ही पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाए, ठीक, अंडरस्टूड। चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग।
टिक द करेक्ट आंसर. वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम. हमारे पास जो जुडिशियल सिस्टम है, फॉर वॉट? इट प्रोवाइड फ्रीडम टू प्रोवाइड फूड, इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ और नन ऑफ दीज. ये फूड प्रोवाइड करने के लिए है या फिर आपके फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए, और इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ और नन ऑफ दीज. ऑफ कोर्स द ऑप्शन नंबर सी would be correct. Judicial system to enforce the rule of law. The Supreme Court was established in. Supreme Court इंडिया में establish कब हुआ था? After independence. Okay, after independence when India adopt the constitution. India ने adoption कब किया था constitution का? 26 जनवरी 1950 में. और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुए हैं 28 जनवरी 1950. So the answer option number A correct. Okay, understood. We have a judicial system to enforce the rule of law, and the Supreme Court was established in 1950. Now true false. The Supreme Court is the highest court in India. सबको पता है. You all know. Yes, is it true? It is true. Supreme Court is the highest court in India. And after that, High Court. Second, the High Courts were established in 1862. In India, the High Courts were first established in 1861. Okay, or here it is written 1862. So the sentence is wrong. ये हो जाएगा आपका false. Criminal cases are tried in session courts. क्रिमिनल केसेस कहाँ पे ट्राइड किए जाते हैं? इन सेशन कोर्ट्स और इन सिविल कोर्ट्स. सिविल कोर्ट्स में सिविल केसेस किए जाते हैं और सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस. ओके, सो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू. द लोक अदालत इज़ अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. जो लोक अदालतें होती हैं वो कैसी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है? जी हाँ, आप लोग पढ़ चुके हो, मैं बता चुकी हूँ आपको सो मेनी टाइम्स कि लोक अदालत क्या है. एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है जो कि इंडिया में डेवलप किया गया है टू लाइटन द कंजेशन और यू कैन से द बर्डन ऑन द रेगुलर कोर्ट्स. तो ये स्टेटमेंट इट इज़ ऑल्सो ट्रू. अंडरस्टूड. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट सी, सेकेंड ए. And true false, first true, second false, third true, and the fourth one is true. Do this exercise in your notebook and other exercises you will get. Okay, now this is enough for today. Thank you so much. Take care.